Narendra Madhav Joshi ji. Uh, as you are aware that it is a year-long program, the Center for Studies in Human Development of Assam University started a year-long program on the foundations of Indian culture. As part of that program, our key resource person, Diganta Vishwa Sharma ji, will deliver 100 lectures during the entire year, and he has already completed 63rd session, and we are hoping that he will be completing the 100 sessions by the end of December 2021. And we are also thinking to start second phase of our program sometimes in the year 2022. Now today, I think as part of our this program, every month we are organizing one guest lecture. And today, this is the 9th guest lecture. We are delighted and privileged to have us amongst us, Dr. Narendra Joshi ji. We welcome on behalf of Center for Studies in Human Development of Assam University, Dr. Joshi. Namaste. Dr. Joshi is a very distinguished academic and competent professional with nearly 3 decades of extensive experience in teaching and research. He has worked as project director and faculty in Indian culture, consciousness studies and integral counseling for Vivekananda Prabodhini, Mumbai. He is working as visiting faculty, adjunct faculty at Oro University, PP Sabani University, among others. He has been associated with University of Patanjali, Vivekananda Kendra, Kanyakumari, Maharashtra and Northeastern region. He has given academic consultancy to educational institutes. He has worked as principal for 8 years and faculty for 9 years. Before that, in engineering field, he is proactive in assessing training and development needs and effectively aligning programs and interventions with business and social objectives. He is a distinguished fellow in the field of human cycle, teachings of Upanishads and Gita, foundations of Indian culture, the Renaissance in India, life divine, and artificial intelligence in the light of integral philosophy. He did his PhD from Hindu University of America, Florida, and his PhD topic was on a study of the philosophy and futurology of artificial intelligence in the light of Sri Aurobindo's integral philosophy. He has conducted creativity and innovation workshops for several colleges, industries, and writing a series of articles on this topic since 2015. He was a winner of the Carnegie Award for Best Article in the Year in BMA Review Journal for 2005-06 on article on management and Indian wisdom. He is associated with various professional bodies like Indian Welding Society, Institute of Indian Foundrymen, Indian Society for Technical Education, Indian Institute of Industrial Engineers, member of Sri Aurobindo Society, Pondicherry. So what I find from his biography is a mixture of technology and spiritual wisdom that Joshi ji has tried to inculcate all these years and trying to answer all these unanswered questions in a more scientific way that I came to know from his biography. My namaskar to you, Joshi ji, for your wonderful, achievement on inculcating Aurobindo's philosophy and also the foundations of Indian culture, the Renaissance in India, all these aspects you have been devoting for the last
to 3 decades of extensive research and teaching. So before we invite Joshi ji, I would request our key resource person, Sri Diganta Vishwa Sharma ji, who is a ardent, who has been associated with Vivekananda, Ramakrishna and Aurobindo's philosophy, an ardent believer on Aurobindo's philosophy, and his lecture on these foundations of Indian culture actually devoted on Aurobindo's book, and he has translated this book into Assamese, and he has already delivered 63 such lectures on these foundations of Indian culture, and he will be completing 100 such lectures, and we will specially welcome Digantoji in this special guest lecture. And I would request you to say a few words before Dr. Joshi take up for deliberation in this 9th guest lecture. Namaskar. Namaskar. Adaraniya Dr. Narendra M. Joshi, the Honorable Speaker of today's program, respected Professor Gopalji Mishra, the Chairman, Professor Z. Ram, the Organizing Secretary, Professor Niranjan Roy, the Coordinator and the primary spirit behind the veil, and Dr. Debatut Chakraborty, the Treasurer of the Organizing Committee of this year-long lecture series, esteemed registered participants, and the invitee guests. Let me first welcome Dr. Narendra M. Joshi, the Project Director, Vivekananda Prabodhini, Maharashtra, and all of you to this August Assembly of Cultured Souls. I am indeed happy and delighted to welcome Adaraniya Dr. Joshi to this ongoing one-year-long 150 hours lecture series on the foundations of Indian culture as our 9th esteemed guest speaker. Not only it would be unfair on my part, it would indeed be an injustice to Dr. Joshi if I do not introduce him as a true lover of Northeast India. Dr. Narendra M. Joshi, then a young production engineer working in a reputed production house, dedicated many years of his youth serving Northeast India as one of the celebrities of Vivekananda Kendra Kanyakumari during the last decade of the 20th century, after having resigned from the position of a production engineer. Dr. Joshi, a seeker of truth, inspired by and responding to his heart's call and motivated by his inner urge to serve the cause of unity and integrity of our dearest mother India, arrives in 1993 at his destination, the Northeast India, to join the Vivekananda Kendra Institute of Culture and Arunjati, the two projects of Vivekananda Kendra Kanyakumari in the area of cultural documentation and research. Bewildered and confused by the infinite and inexhaustible diversity of India, like many elite intellectuals of modern India, yet absolutely sure and convinced in his heart about her underlying and fundamental unity, Narendraji started his pilgrimage of exploration, which finally led him to author a book titled Astatha, where he has beautifully given form to his idea of Northeast India and its cultural and spiritual unity with the Bharatabarsha. We are indeed happy and delighted to have him amongst us as our 9th esteemed guest speaker of this year-long lecture series. We express our sincere thanks and gratitude to him from the core of our heart for accepting our invitation despite his extremely busy engagement. Let me now quote from Sri Aurobindo's cultural magnum opus titled The Renaissance in India and Other Essays on Indian Culture. I quote, "One may well say that beyond the ordinary cultivation of the aesthetic instinct necessary to all artistic appreciation, there is a spiritual insight or cultural
or culture needed if we are to enter into the whole meaning of Indian artistic creation. Otherwise, we get only at the surface external things, or at the most at things only just below the surface. It is an intuitive and spiritual art and must be seen with the intuitive and spiritual eye. This is the distinctive character of Indian art, and to ignore it is to fall into the total incomprehension and into mass misunderstanding, unquote. There are three elements of arts, which Sri Aurobindo puts as follows: to embellish life with beauty is only the most outward function of art and poetry. To make life more intimately beautiful and noble and great and full of meaning is its higher office. But its highest comes when the poet becomes the seer and reveals to man his eternal self and the Godheads of its manifestation, unquote. Therefore, Sri Aurobindo says that the nature of art is to strive after a nobler beauty and more sustained perfection than life can give. Is there any national value of art? Sri Aurobindo says, yes, art has tremendous national value that no nation can afford to neglect its role in its collective life. He writes, it is not necessary that every man should be an artist. It is necessary that every man should have his artistic faculty developed, his taste trained, his sense of beauty and insight into form and color, and that which is expressed in form and color made habitually active, correct, and sensitive. It is necessary that those who create, whether in great things or small, whether in the unusual masterpieces of art and genius, or in the small common things of use that surround a man's daily life, should be habituated to produce, and the nation habituated to expect the beautiful in preference to the ugly, the noble in preference to the vulgar, the fine in preference to the crude, the harmonious in preference to the gaudy. A nation surrounded daily by the beautiful, noble, fine, and harmonious becomes that which it is habituated to contemplate and realizes the fullness of the expanding spirit in itself. But Mahajogi has also stated that modern mind tends to depreciate the value of beautiful and overstresses the value of the useful. He says, and let me quote, the value attached by the ancients to music, art, and poetry has become almost unintelligible to an eye bent on depriving life of its meaning by turning art into a sort of glorified anthill or beehive, unquote. Let me now wind up here, as we all are eagerly waiting for Adaraniya Dr. Narendra M. Joshiji to enlighten us on Indian art, a science of cultivating knowledge and bliss in life. Before I finally conclude, please let me quote once again Sri Aurobindo on the use of art. He says, the first and lowest use of art is the purely aesthetic. The second is the intellectual or educative. The third and highest, the spiritual. He further says, if art service is but to imitate nature, then burn all the picture galleries and let us have in-street photographic studios. It is because art reveals what nature hides, that a small picture is worth more than all the jewels of the millionaires and the treasures of the princes. If you only imitate visible nature, you will perpetrate either a corpse, a dead sketch, or a monstrosity. Truth lives in that which goes behind and beyond the visible and sensible, unquote.
I now cordially invite Adaraniya Dr. Narendra N. Joshi ji to deliver his speech in Hindi. With my heartfelt thanks and gratitude to all of you, I finally stop here. Namaskar to all. Thank you. Dr. Joshi ji. नमस्कार, बहुत बहुत आभार सबसे पहले, क्योंकि मुझे जिस प्रकार से यहाँ निमंत्रण दिया गया उससे मुझे बहुत संतोष हुआ है। मैं आपको बता नहीं सकता कि नॉर्थ ईस्ट के साथ, जैसे दिगंत विश्व शर्मा जी ने भी मेंशन किया, मेरा किस प्रकार का नाता है। मैं शायद आपको बता नहीं पाऊंगा या आप शायद बिलीव नहीं करेंगे उसको, लेकिन एक बहुत ही आंतरिक नाता है, आत्मीय नाता है, और इसलिए कुछ भी कोई भी बुलाए इसमें मुझे आनंद होता है। और इस प्रकार से ये प्रोग्राम जहाँ पे 150th महायोगी श्री अरबिंदो जी के जन्मगांठ पर आदरणीय श्री दिगंत विश्व शर्मा जी, उन्होंने इतना बड़ा एक संकल्प किया और उसको ठीक यशस्विता से पूर्ण कर रहे। इसके लिए मैं सर्वप्रथम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये शिवधनुष्य के जैसा था कि आपने 150 उनके फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर पे भाषण देने का संकल्प किया, और सिर्फ संकल्प नहीं किया, लेकिन आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर इन्होंने भी उसमें इतना बड़ा अभी योगदान दिया कि मैंने अभी सुना प्रोफेसर निरंजन रॉय जी से कि more than 60 lectures are already done. Some 63-64 lectures are already done. That is something mammoth. Actually, I must congratulate Diganta Vishwa Sharma ji, and also Dr. Niranjan Roy ji and all the other faculties and secretary and all the great people there. I am sorry I don't know all the names, but let me congratulate all of you. सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार कि आपने इस श्रृंखला में कुछ कहने के लिए मुझे भी एक अवसर प्रदान किया। और जैसे आपने मेरे शुरुआती के बारे में जो कहा गया था उसमें सुना कि मैं बेसिकली मैं ह्यूमैनिटीज साइड से मैंने मेरा शिक्षा शुरुआत नहीं की थी, मैंने अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग साइड से शुरुआत की। उसमें मैं आगे जा रहा था, काम कर रहा था। बाद में स्वामी विवेकानंद के बारे में जब पढ़ा तब मुझे ये लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, और फिर विवेकानंद के कन्याकुमारी में मुझे प्रेरणा मेरी आगे मिल गई। और मेरा जो पोस्टिंग किया आदरणीय बालकृष्ण जी ने मुझे पूछा भी था, मुझे आज भी वो दिन याद है, उन्होंने मुझे पूछा था कि तुमको नॉर्थ ईस्ट में पोस्ट करेंगे, चलेगा नरेंद्र? और मैंने तुरंत बताया था कि आई विल लव इट, दिस वाज माय वर्ड, आई वांट टू गो, बिकॉज अगर बम्बई से बाहर ही निकले तो कुछ ऐसा करेंगे जो थोड़ा सा मुश्किल हो, ऐसा मेरी धारणा थी। तो मैंने सोचा कि अगर वापस जाके मुझे बम्बई में ही जॉब ये मतलब पोस्टिंग करेंगे तो उसमें कुछ मजा नहीं है, लेट मी ट्राई समथिंग। इस प्रकार से मेरा पहला नॉर्थ ईस्ट से परिचय हो गया। उसके पहले पढ़ा था कन्याकुमारी के लाइब्रेरी में, बहुत सारा सुंदर किताबें थी, श्री अरबिंदो की भी थी, स्वामी जी की थी, बहुत सारी थी। लेकिन इसके बारे में जब मैंने पहले वहां कदम रखा तो मुझे ऐसा लगा कि एक भारत पुण्य भूमि, ऐसा क्यों कहते हैं स्वामी जी, हमेशा क्यों कहते हैं कि देयर इज अ लैंड ऑन द अर्थ व्हिच कैन बी कॉल्ड एज ब्लेसेड पुण्य भूमि, एंड इट इज भारत। एंड उसमें भी जैसे यहाँ के भी आदरणीय संत कहते हैं कि कोटि कोटि जन्म में जब कोई महापुण्य की राशि करते हैं तभी कदाचित जन्म हुए भारतवर्षयासी, ऐसा कुछ श्लोक है, शायद मेरी थोड़ी भूल हो रही है, लेकिन ये वहां का एक बहुत सुंदर सेइंग है कि बहुत सारे कोटि कोटि जन्मांतरे जब महापुण्य की राशि होते तो तब जाके आपको भारतवर्ष में जन्म मिलता है। मैं थोड़ा सा मेरा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई, कुछ मैं नहीं बता पाया तो मुझे आप क्षमा कीजिए, लेकिन मेरी ये धारणा है, मैं पुष्पांजलि समर्पित कर रहा हूँ भारत माता के चरणों में, इसलिए आप उसका स्वीकार करें। ये year long 150 hours lecture series. I hope I am audible and you are able to see my presentation now. ठीक है. Okay. So this I'm giving this subject on this subject, Indian art, a science of cultivating knowledge and delight. भारतीय कला, ज्ञानमयी और आनंदमयी जीवन का शास्त्र। और मैं हिंदी में बात करूंगा, इस प्रकार से निर्धारित हुआ है, तो इसलिए मैं उसको ही आगे लेके जाने की कोशिश करूंगा। हालांकि पीपीटी में कुछ जो चीजें हैं वो शायद आपको इंग्लिश में वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन मैं बताते समय उसको हिंदी में बताऊंगा। तो कला क्या है? अभी 2-3 सुंदर कोटेशंस आपने देखे श्री अरबिंदो के, द रिनाइसेंस इन इंडिया, या जिसे पहले फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर कहते थे, उसके बारे में, और उसके कई प्रकार के उसके जो आयाम है उसके बारे में ये कोटेशंस में बहुत सुंदर लिखा था। और ये भी एक कोटेशन था कि आधुनिक जो मानव है, आधुनिक जो हमारा जगत है, उसको इतना वो यूटिलिटेरियन या इतना वो उपयोगितावादी हो गया है। हर चीज का उपयोग क्या है, इसका क्या उपयोग है, इसका क्या है, इतना सोचते बैठे हैं, इतना जड़वादी हो गया है, मटेरियलिस्ट हो गया है,
कि उसको कला के बारे में, कला की साधना के बारे में, संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्पकला, इसके बारे में, साहित्य के बारे में उसके पास समय नहीं है। समय हो तो उसका महत्व समझ में नहीं आता है, उसकी जो बिल्कुल ही जड़वादी उसका मन और धारणा हो गई है। तो इसमें समझना बहुत मुश्किल है कि इसका महत्व क्या होगा, लेकिन हम लोग हमारी परंपरा से ये समझ सकते हैं कि आर्ट क्या होती है, कला क्या होती है। तो रेशा है, रंग है, आकार है, कोई वक्र रेशाएं हैं और उसके कोई रचनाएं हैं, पैटर्न्स है, और उसका सब पैटर्न्स का एक प्रकार से रिदम जिसको कहा जाए, उसके एक प्रकार से जो वारंवारिता है, उसके जो एक कंपन है, ये सारे से आपको एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस, मतलब एक सौंदर्य का अनुभव होता है, सुंदरता का अनुभव होता है। और इसकी पहली जो धारणा है वो निसर्ग से ही होती है। इसलिए कुछ निसर्ग के फोटोग्राफ्स में यहाँ दिखा रहा हूँ कि हर चीज में, छोटे छोटे फूल में भी, सिर्फ गुलाब में ही नहीं, हर छोटे फूल में भी आपको इस प्रकार की रचना दिखती है। जोशी जी, हाँ जी, प्लीज मेक इट फुल स्क्रीन। ओके, फुल स्क्रीन। I'm going to slide show. Just wait for a minute. Is that okay now? Yeah, now it is okay. Okay. तो हर निसर्ग की हर, आप देखेंगे पंछी के उड़ने में, उसके घरोंदे में बैठने में, फूल के खिलने में, और छोटे छोटे कीटक कृमियों के इसमें भी कोई रंग है, कुछ रेशा है, कुछ आकार है, उस आकारों का एक प्रकार से एक वारंवारिता है, और उस वारंवारिता में भी एक प्रकार का एक विभिन्नता है, मतलब विभिन्नता में एकता। अब छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, ये सारी पंखुड़ियां एक जैसी नहीं है, थोड़ा थोड़ा फर्क है उसमें, उसके शेड्स में या रंगों के छटा में भी थोड़ा फर्क है। ये जो आप देख रहे पंछी एक साथ ही जा रहे, लेकिन थोड़े फर्क है उसमें। तो हर इसमें विभिन्नता है, फिर भी एकता है। ये सारी सृष्टि का नियम है। और जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द प्लान ऑफ नेचर एंड इंडिया हैज अंडरस्टूड बेस्ट than any other people. If you compare with the entire humanity, India has understood is better. तो इस प्रकार से एक संस्कृत श्लोक भी है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। इसका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बताया, लेकिन कहने के लिए, हमें समझने के लिए, तात्पर्य के लिए अच्छा है कि जो व्यक्ति को म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है, संगीत में इंटरेस्ट नहीं है, साहित्य में इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी कला में उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो बिल्कुल किसी पशु की तरह है। जो सिर्फ इतना फर्क है कि पशुओं को सींग और पूंछ होती है, या ऐसा मनुष्य प्राणी दिखता तो मनुष्य है, लेकिन प्राणी है जिसको सींग और पूंछ नहीं है। इतने कठोर शब्दों में हमारे पूर्वजों ने लिखा था कि साहित्य संगीत कला विहीन, ये तो साक्षात पशु जैसा है। क्योंकि पशु का ही एक ये प्रकार का एक तत्व होता है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भी नारायणम। आहार करो, निद्रा करो, किसी चीज से डरते डरते जियो और मैथुन करो, इतनी चार क्रिया उनको पता होती है। इसके आगे जब आपको अपनी स्वाभाविक नैसर्गिक प्रेरणाओं को एक ऊपरी दिशा देनी पड़ती है, उसके लिए संस्कृति की आवश्यकता होती है। और संस्कृति में कला का एक असाधारण महत्व है, जिससे सामान्य लोगों को ये शिक्षा मिलती है। और आप जस्ट देखेंगे कुछ चित्रों के इस एकत्रीकरण को, तो नॉर्थ ईस्ट का यहाँ बहुत सारे आपको नृत्य प्रकार, संगीत प्रकार आपको दिखेंगे। बिहू तो हम सबको पता है, और उसके अलावा भी अनेक प्रकार के जो नृत्य है, अरुणाचल के, नागालैंड के, मिजोरम के, हमें हर जगह पर अलग अलग रंगों का, आकारों का, रेशाओं का, और एक वर्तुलाकार जिसको कहते हैं सर्कुलर एंड साइक्लिक मोशन में जाने का जो एक प्रक्रिया है, उसमें बहुत ज्यादा तत्वज्ञान भी है। सामान्य लोगों को तत्वज्ञान अगर सिखाना हो तो कला से अच्छा कोई भी चीज नहीं हो सकती। इट्स अ वंडरफुल वे टू टीच कॉमन पीपल अबाउट ग्रेट फिलोसॉफिकल ट्रूथ्स, क्योंकि उनको पढ़ के नहीं समझेगा, उनकी शिक्षा करने का, उनकी एजुकेशन करने का ये बहुत ही असाधारण उपाय है कि उनके कॉन्शियसनेस में, उनकी चेतना में ये भाग आना चाहिए कि सृष्टि चक्राकार है, समय चक्राकार है, हमारे सारा जीवन चक्राकार में, युगो युग के परिवर्तन में जा रहा है। हम आगे जाते हैं, कभी थोड़े पीछे आते हैं, लेकिन हर बार जब आगे पीछे आते, सृष्टि का या जीवन का नियम है, कभी आगे जाना है, कभी पीछे आना है, थोड़ा घूमना है, थोड़ा पीछे मुड़ना है, आगे मुड़ना, ये जीवन है। लेकिन इसमें भी एक आनंद है, ये आनंद को आप उठाइए। और जीवन का एक रंगमंच है, सबको एक साथ उस पर चलना है, अपनी अपनी भूमिका निभानी है। तो नृत्य में, संगीत में, कला में एक बहुत ही गहरा शिक्षा पद्धति है, जिसके वजह से हमारे सारे जो जनमानस था उसके अंदर ये वेदांत आ गया। और इसलिए आप गरबा कहिए, भांगड़ा कहिए, हमारे यहाँ गणगौड़न या भोंडला होता है महाराष्ट्र में, वो देखिए, या फिर चेराव नृत्य मिजोरम का देखिए, या रासलीला देखिए मणिपुर की, या अर्थात सत्र की जो परंपरा है
आसाम की महान परंपरा, उसके बारे में सोचिए, तो हर जगह पर आपको दिखता है। और बिहू जैसे नृत्य देखिए, हर जगह पे आपको एक ही भाव दिखता है कि विविधता में एकता है, और हर सृष्टि के हर कला क्रिया में आनंद है। और ये आनंद, द डिलाइट और द सच्चिदानंद में जो तीसरा भाग आनंद का आता है, उसका अनुभव करना हर व्यक्ति का जीवन का एक सार्थ भाव होता है। मुझे अभी भी याद है, उल्लेख भी किया गया कि मैं पूर्ण काल कार्यकर्ता था विवेकानंद केंद्र का, और जब पहली बार मैंने ये अंबारी का शिवजी की मूर्ति देखी, तो जो मेरे मन पे उसका असर हुआ था, वो कई साल तक वो वैसे ही रह गया। जिसने ये निर्माण किया उसको शायद पता भी नहीं होगा कि महाराष्ट्र से कोई लड़का आएगा यहाँ पे और इस मूर्ति को देखेगा, और उसको इतना आनंद मिलेगा कि जो मैंने 1995 में या 1995-96 में देखा, वो 2021 तक मुझे आज भी, जब मैं प्रेजेंटेशन के लिए ये इमेज बना वापस उसको इकट्ठा कर रहा था, मुझे उतना ही आनंद मिला। चिरकाल चलने वाला आनंद मिलना ये कोई साधारण बात नहीं है। एक कलाकार, एक शिल्पकार, एक मूर्तिकार, एक जिसे साहित्य लिख सकता है, ऐसा काव्यकार, रचनाकार, संगीतकार ऐसा आनंद बना सकता है। कलाकार चला जाता है, उसका जो शरीर है वो तो मॉर्टल है, मर्त्य है, वो चला जाता है, उसकी कला रह जाती है। और हमारे भारतीय परंपरा में तो कलाकार ऐसे थे, उन्होंने अपना नाम तक पीछे नहीं छोड़ा। कई कला, कई शिल्प, कई महान मंदिर है, हमें पता नहीं वो कौन है, क्योंकि ये सारा जैसे वेद और पौरुष, ये हमारी कला भी किसी नाम के लिए, निधान के लिए, किसी उपमा के लिए, किसी अनुदान के लिए या किसी की वाहवाह के लिए रुकी नहीं थी। ये निजानंद की कला थी। स्वांत सुखाय, मुझे आनंद मिल रहा है, मेरा आत्मा मुझे इसमें मैं मिल रहा हूँ, मेरा जीवात्मा मेरे परमात्मा की तरफ जाते समय कला मेरे लिए एक बहुत ही सोपान है, मेरे सहस्त्र सोपानों में से एक बहुत अच्छा राजमार्ग है ये, इसलिए मैं उससे जा रहा हूँ। आपको अच्छा लगे बढ़िया, आपको नहीं लगे तो भी अच्छा, लेकिन अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके पीछे तपस है, इसके पीछे मेरा साधन है। योगी, एक शिल्पकार कौन हो सकता है? उसको योग का पूरा ज्ञान होता था, उसके पीछे बहुत बड़ा साधन होता था, उसके लिए कुछ नीति नियम बनाए थे। वो कैसा है, वैवाहिक है तो वैवाहिक जीवन कैसा होना चाहिए, इसके नियम थे। ये सारा संभालने के बाद जब वो उस मूर्ति को पहले ध्यान में दिखता था, हमारे यहाँ श्लोक है, ध्यान अवस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। योगी जो ध्यान में देखते हैं, उसे ही कलाकार अपनी चित्रकला में, शिल्पकला में या अन्य कलाओं में उसको प्रकट करते। ध्यान अवस्थित तद गतेन मनसा, ध्यान होना है। योगा की जो सारी पतंजलि के योग सूत्र है, उनको ज्ञात होते थे, उनको सारा मटेरियल साइंस का ज्ञान होता था। उनको एक ऐसे नहीं होते कि ডক্টৰ ৰয় কি হ'ল, সাউন্ডটো তেখেতৰ তাতেই হৈছে নেকি বন্ধ নেকি? তেখেতৰ হেৰি হ'ল, নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম। তেখেতৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হৈছে বোধহয়। যোশীজি, ডক্টৰ যোশীজি, নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম। তেওঁৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হৈছে বোধহয়। কাৰেণ্ট যাব পাৰে, যদি জিঅ' ফাইবাৰ টাইবাৰ লোৱা আছে অলপ দেৰি চাই লওঁ ৰ'ব, মই ফোন কৰোঁ নহ'লে এবাৰ। ডক্টৰ যোশীজি, ডক্টৰ যোশীজি, য়েছ, তেখেতে আকৌ জইন কৰিব, আকৌ কৰিব জইন, নহয় জানো? आपका क्या ये जो डिस्कनेक्ट हो गया क्या? क्षमा करें, मेरा इंटरनेट कनेक्शन शायद चला गया था, इसलिए आपको थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया।
मैं वापस उसको प्रेजेंट करता हूँ। आई होप मैंने पहले 1-2 स्लाइड में बता पाया था, उससे मैं आगे ले सकता हूँ। क्या मैंने का पार्ट स्टार्ट किया था अंबारी के नटराजा के बारे में? शायद हाँ, ये जस्ट शुरू किया था, मैं वहां से लेता हूँ। क्षमा करें, इंटरनेट का कनेक्शन यहाँ थोड़ा बारिश की वजह से कम ज्यादा हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब मैंने पहली बार गुवाहाटी के ये म्यूजियम में नटराजा की मूर्ति देखी, तो जो इम्प्रेशन मेरे मन पे हुआ, उसको मैंने कोशिश की कि मैं उसका क्या, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या करूं, क्योंकि हमारे जो सारे कलाकार होते थे, शिल्पकार, मैं कह रहा था आपको, अपने आप में एक बड़े योगी होते थे, तप का सामर्थ्य होता था, साधन होता था, और बिल्कुल ही उनमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता था। तो उसको किस प्रकार से हम अपने वापस एक बार उसको सृजन करें, उसका वापस उसको पुनर्निर्माण करने की कोशिश करें। तो हर पीढ़ी को, आपको मेरा प्रेजेंटेशन अभी दिख रहा है? कैन यू प्लीज कंफर्म इट? यस, मेक इट फुल स्क्रीन। मैं इतना रखता हूँ क्योंकि फुल स्क्रीन में कनेक्शन चला गया तो पता नहीं चलता, इसलिए मैं इतना रखता हूँ 90%। फुल स्क्रीन, या आई एम जस्ट पुटिंग 90% सो दैट आई विल नो दैट माय कनेक्शन इज देयर, प्लीज। तो ये इस प्रकार से वापस उसको वो ट्रेडिशन को बार बार क्रिएटिविटी से वापस उसको लाना पड़ता है। तो ये सारे जो रेखा चित्र है वो नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग जगह पर जो दिखे थे उसको वापस बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वाक्य मैंने पढ़ा था कि वाटर इन द लोहित रिवर शाइन्स ड्यू टू शिवा डूइंग तांडवा, ये भार्गव ग्रांट में एक वाक्य आता है। तो वो कैसा होगा, एक शिव तांडव कर रहे हैं और उसके वजह से लोहित रिवर के पानी में चमक आ रही है। ये कल्पना ही इतनी सुंदर लगी और इतनी अच्छी लगी कि इससे अच्छा कलाकार क्या या सृजनशीलता का आविष्कार क्या हो सकता है, ये सोचने की बात है। तो इस प्रकार से अनेक इंप्रेशन जो थे मेरे ऊपर ये कलाकारों के, शिल्पकारों के। तो मैं ये कह रहा था कि सहस्त्र वर्षों के बाद भी जो कोई अच्छी रचना इस प्रकार से योग विद्या से युक्त और कलाकार जो करते हैं साधन युक्त, तो उनका आनंद बाकी पीढ़ियों को भी मिलता ही रहता है। तो ये उसका कहने का तात्पर्य था। और इसलिए यहाँ पे ये कहना बहुत स्वाभाविक है कि किस प्रकार से इसमें ये क्यों आता है। तो एक अर्बन हो या रूरल हो या ट्राइबल हो, लिटरेट हो या इलिटरेट हो, और कोई इंडल्ज करने वाला हो या रिनाउंस करने वाला, सबके लिए एक प्रकार से आर्ट या कला होती है, सबका एक अपना शास्त्र होता है। ये हमें समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कोई भी कला का एक मुख्य बिंदु होता है रसोत्पत्ति, या उसमें से रस की आविष्करण होना, उसमें रस का होना बहुत जरूरी होता है। और इसलिए रस क्या है, सिंपल वर्ड्स में बोला गया तो रस एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस होता है। तो आर्ट एंड कल्चर हैज ग्रेटर सिग्निफिकेंस देन एंटरटेनमेंट इंडिया। श्री अरबिंदो का जब हम लोग पढ़ते हैं तो आसान शब्दों में उसको बताने की कोशिश करता हूं मैं, क्योंकि अदरवाइज आप पूरा बुक भी देख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ये था कि एक प्रकार से ये एक हमें जो एक चाहत होती है कि आनंद मिलता रहे, ज्ञान मिलता रहे, और हमारी अमरत्व का हमें खोज मिलती रही है, और एक शांतता मिले। तो आनंद, शांतता, अमरत्व और ज्ञान, ये सारा मिलने के लिए कुछ अगर करना है तो उसके लिए कला का आविष्कार या कला की खोज, कला का शिक्षण होता था। ये सिर्फ मनोरंजन करना भारतीय कला का कभी भी मकसद नहीं है। तो इसलिए ये भी होना चाहिए कि आप किसी, जैसे पहले भी एक कोट में कहा था दिगंत जी ने, कि ये जरूरी नहीं है कि आप हर कला में कहीं ना कहीं पे आप एक्सपर्ट हो जाए, वो जरूरी नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि हर व्यक्ति रसास्वाद ले सके। मतलब वो कोई कला जब आती है तो आप उतना कम से कम समझ सके कि इस कला में आनंद कहाँ है, ये कला में कितना सुंदरता है, एक उसका रस आप समझ सके, उसका आनंद ले सके। इतना रसिकत्व कम से कम हर एक में होना चाहिए, चाहे वो कलाकार हो या न हो, अपने आप में कलाकार हो ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए आर्ट ऑफ रिसाइटेशन, आर्ट ऑफ एक्टिंग, आर्ट ऑफ म्यूजिक, ये सब मिलके एक रसोत्पत्ति करना हमारे सारे पूर्वजों का लक्ष्य था। और हम लोग सब लोग जानते हैं कि कालिदास हो या भवभूति हो या भर्तृहरि हो या कोई भी आप अच्छे हमारे कवि साहित्यिक देख ले, उन्होंने यही बात कही है जो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं कि रसो वही सह। वो कहते हैं कि मैं रस हूं, हर चीज में जो रस है, हर चीज में जो तात्पर्य है, हर चीज में जो मर्म है, वो मैं हूं, ऐसे परमात्मा खुद कहते। तो ये परमात्मा का रूप ही है, आनंद लेने की जो प्रक्रिया है कला में, ये सारा परमात्मा का रूप है। इस प्रकार से हमारे यहाँ बताया जाता है। कालिदास भी कहते हैं अपने कुमार संभवम में कि प्रेम की अनुभूति के लिए रस शब्द उन्होंने उपयोग किया है। प्रेम की अनुभूति, कभी भी आपको किसी चीज में रस लगता है तो प्रेम उत्पन्न हो जाता है, आनंद होता है, प्रसन्नता होती है। और इसलिए ये रस का निष्पत्ति, रस का निर्माण होना और उसका आस्वाद लेना, ये दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हम जो कोई जीवन में अपना भोजन भी करते हैं उसमें हम लोग रसास्वाद करते हैं, स्वाद होना, रुचि होना, किसी इच्छा की पूर्ति होना, इसके लिए भी ये शब्द, जो भी चीज में एक इसेंस है, एक सैप है, उसका जो जीवन है वो रस है।
उसी प्रकार भर्तृहरि भी कहते हैं कि किसी चीज का जो सर्वोत्तम भाग है वो रस है। इसलिए विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि मैं किसमें क्या हूँ, मांस में मैं मार्गशीर्ष हूँ, मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, तो इस प्रकार से मैं वेदों में मैं सामवेद हूँ। तो इसका मतलब हर चीज में जो सर्वोत्तम है वो रस है। हमारे आयुर्वेद में भी रस के ऊपर ही सारा सप्त धातुओं को भी हमने रस करके जो पारा है उसको रसेश्वर या रसराज कहा है। तो सारे साहित्य में भारतीय संस्कृति के रस का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए उत्तरामचरित में रसज्ञ ये शब्द यूज करते हैं उसको और कहते हैं कि जो काव्य का मर्म जानता है उसको रस सिद्ध कहते हैं। हर प्रकार से और बहुत कुछ उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन जो 9 रस सब लोग जानते हैं वो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, और उनका एक वत्सल करके वात्सल्य का रस भी उसमें जोड़ दिया गया। तो ये रसों का निर्मिति, उसका आनंद और उसका सब समाज में एक प्रकार से उसका विस्तार करना, यही सारे कला का मर्म है। और ये जैसा मैंने पहले कहा, लोगों को इकट्ठा रखने के लिए, उनको शांतता देने के लिए, उनके सारे जीवन के सारे व्यापों से उनको मुक्त करने के लिए थोड़े समय के लिए कला का बहुत बड़ा उपयोग है। और इसलिए सत आस्वादयते इति रसः, जिसका आस्वादन किया जाए, जिसको सराह सराह कर चखा जाए, उसको रस कहते हैं। हर शिल्प में, हर कला में, हर रंग रूप में आप देखेंगे कि रस बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कोई चीज आपको जब अच्छी लगती है भोजन में भी, तो स्वाभाविकता आप उसको धीरे धीरे खाते हैं। जो अच्छी लगती है आपको चक चक के धीरे धीरे सराह सराह के खाना है, उसी प्रकार कला को भी धीरे धीरे देखना है। शनै शनैरु परमे, इस प्रकार से हमें गीता में कहते हैं, लाहे लाहे, समीज में हम लोग जैसा कहते हैं कि धीरे धीरे करो, आराम से करो। आप किसी चीज का आनंद उठाएं तो आपको उसमें से अंदर उतरना पड़ेगा, उसको ठीक से टटोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वारंवार उसकी अनुभूति करनी पड़ेगी, तब उसका रस आपको मिलता है। इसलिए आज के दौड़ धूप के जीवन में लोग रस नहीं पाते, निरस हो जाते हैं, क्योंकि उनके वो स्पीड में, वो गति में उनको किसी चीज को सराह सराह कर चखने की उनके पास सुविधा ही नहीं है। काव्य का मतलब या कथा का मतलब या साहित्य का या शिल्प कला, सबका मतलब यही है कि आपको रस प्राप्ति होनी चाहिए। ये आत्मा है उसकी। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये संस्कृत में कहा गया है कि कोई रसयुक्त जब वाक्य होता है उसी से आपको काव्य की अनुभूति या कला की अनुभूति होती है। तो इसलिए हमारे सारे प्राचीन वाङ्मय 64 कला सिखाने वाले थे। हमारे सारे शिक्षण में भी जो हमारे यूनिवर्सिटीज थे बड़े बड़े, वहां से लेके जो घर में शिक्षण होता था, गांव में शिक्षण होता था, बड़ी बहुत ही सुंदर शिक्षा की एक सिस्टम थी। वो सारे सिस्टम में 64 कलाओं का हमेशा उपयोग होता था। और अगर आप उसकी लिस्ट भी देखेंगे, सारा आज बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आप जरूर उसको देखिए। हर प्रकार के जीवन के सौंदर्य को देने वाली या कला को या रस निष्पत्ति करने वाली जो चीजें होती है, उसमें इसका हम लोग प्रादुर्भाव देखते हैं। मतलब नृत्य, गान और ये सब तो है ही, रंगोली है, पुष्पों की रचना है, लेकिन छोटी छोटी कलाएं भी उसमें कभी छोड़ी नहीं है कि किस प्रकार से इसका सजाना चाहिए, किस प्रकार से मेहंदी लगानी चाहिए। हर कला का, छोटे बड़े कला का हमारे यहाँ लिस्ट में प्रादुर्भाव किया गया है। आप देखेंगे लिस्ट को, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आर्ट ऑफ जगलरी से लेके आर्ट ऑफ स्लेट ऑफ हैंड से लेके, कभी कभी तो अचरज होता है कि आर्ट ऑफ मेकिंग वैरायटी ऑफ फूड्स, करी, सूप्स एंड स्वीट मीट्स, ये भी एक 64 कला में एक है। तो पकवान बनाना ये भी एक पाक कला हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण थी। आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफरिंग्स फॉर दी राइस एंड फ्लावर्स, तो जो अल्पना या कोई चावल की रंगोली होती है या ऑफरिंग होता है, उसकी भी एक कला है। या आर्ट ऑफ डिजाइनिंग प्रिपरेशन ऑफ गार्लैंड्स, हर चीज, हर जीवन की हर चीज को कला की दृष्टि से देखा, इसलिए 64 कलाओं की रचना हमने की थी। तो इस प्रकार आर्ट ऑफ क्लीनिंग टीथ, क्लीनिंग क्लोथ्स एंड पेंटिंग बॉडी, ये तो हमें लगता है बहुत, पेंटिंग बॉडी हमें लगता है बहुत मॉडर्न आर्ट है, लेकिन मॉडर्न नहीं है। एंशिएंट जमाने से ही एक प्रकार से ये सारी कलाएं थी। और हर चीज में कला ढूंढना मतलब हर चीज में एक शास्त्र या एक प्रकार की प्रणाली ढूंढना, और दूसरी जगह से हर चीज में आनंद ढूंढना। तो अच्छी चीज होनी चाहिए, ठीक से करनी चाहिए, उसकी एक मेथड होनी चाहिए, साइंस उसका समझनी चाहिए, और उसके बाद उसमें बहुत अच्छा आनंद भी आना चाहिए। इसलिए उस कलाओं का सारी रचना की थी। जैसा मैंने कहा 64 कलाएं, पढ़ते पढ़ते सिर्फ लिस्ट भी पढ़ेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। आर्ट ऑफ नोइंग, ये भी एक है, और आर्ट ऑफ नोइंग प्रोविंशियल डायलेक्ट्स, आर्ट ऑफ अवेकनिंग साउंड फ्रॉम मनी, सो एवरीथिंग, आर्ट ऑफ अवेकनिंग मास्टर विद द म्यूजिक। आपके कोई किसी के यहाँ दास है तो उसकी मास्टर को उठाने की भी एक कला है, कैसे उठाना है। मतलब हर जीवन के छोटे छोटे मिनरोलॉजी या ज्वेल्स, मेटलर्जी, ये तो है ही, लेकिन बड़ी आर्ट ऑफ इंजीनियरिंग, आर्ट ऑफ कारपेंट्री, ये सब है। लेकिन छोटे छोटी चीजों में भी आपको कला का आविष्कार किया है। ये क्यों किया, ये थोड़ा हम लोग समझ लेंगे। ये इसलिए है, भारत में कला का महत्व, व्हाई आर्ट इज सो इम्पोर्टेंट इन इंडियन कल्चर, जैसे शुरुआत में बताया हमने कि ये इंटीग्रल एजुकेशन ऑफ द होल बीइंग, पूरे हमारे जो मनुष्य का पूरा
एक विशेष है, पूरी जो उसकी रचना, ये उसका आत्मा, उसका बुद्धि, उसका मन, चित्त, उसका जो प्राण और उसका शरीर, ये सबका सर्व स्तरों पर अगर आपको उसका हृदय, उसका मन, उसकी बुद्धि, हर एक का अगर आपको एकत्रितता, इंटीग्रली मतलब एकात्मता से अगर आपको शिक्षा देनी है, शिक्षण देना है, तो उसके लिए आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए चाहे आप मैथमेटिक्स सिखाओ या साइंस सिखाओ, पुराने हमारे पूर्वजों के समय हम लोग उदाहरण दे सकते हैं कि तब उसका भी सिखाते समय हम लोग काव्य का उपयोग करते थे, रचना का उपयोग करते थे, सुंदर डिजाइन्स बनाते थे, ताकि मैथमेटिक्स भी कभी बोरिंग ना हो। आज शिक्षा से पूरी तरह से ये निकल गया है। जब मैथमेटिक्स सिखाते हैं तो उसमें काव्य या को भी ड्राइंग का इस्तेमाल नहीं करते, आर्टिस्टिक प्रिपरेशन नहीं करते, साइंस पढ़ाते समय भी नहीं करते, इसलिए दोनों में विसंवाद हो गए। इसको आगे जाके हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ये हो गया है। लेकिन आर्ट, एथिक्स, फिलोसॉफी, पोएट्री, लॉजिक, इमोशन, कल्चरिंग, सबके लिए कला का माध्यम एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। किसी को एकाग्रता सिखानी है तो भी कला का उपयोग हो सकता है, किसी को वैराग्य सिखाना है, डिटैचमेंट सिखाना है, उसके लिए भी कला का उपयोग होता था। और इसका एक उदाहरण आप लोग बुद्धिस्ट मंडला में देखेंगे, बहुत ही सुंदर मंडल बनाते थे। ये खैर पेन से बनाए, लेकिन वो लोग जमीन पे रंगोली से बनाते थे, और बाद में 5 मिनट के बाद ही पूरे वो मंडल को वो लोग बिखर देते थे। जो बनाता है वही उसको बिखरता भी है। तो एक प्रकार का डिटैचमेंट, कॉन्सेंट्रेशन है जब आप बना रहे, और डिटैचमेंट है जब आप उसको तोड़ रहे। तो ये होना चाहिए ताकि जीवन का जो एक साधन है वो आपको समझ में आ जाए कि हर चीज नाशवंत है, उसके पीछे जो आत्मन है, जो ब्रह्मन है, उसकी खोज करना हमारा कर्तव्य है। कोई भी जो धार्मिक कार्य होता था, रिलीजियस रिचुअल होता था, उसके प्रिपरेशन के लिए, उसके स्टार्टिंग के लिए इसका उपयोग होता था, क्योंकि यहाँ से आपकी चित्त शुद्धि होती है। आपका चित्त जब सरल होता है, शुद्ध होता है, तब आपको एक प्रकार से कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए जो आवश्यकता है चित्त के स्थिर होने की, शुद्ध होने की, वो मिलती है। इसलिए आप देखेंगे कोई भी हमारे धार्मिक काल, इसके क्रिया के पहले एक कोई ना कोई तो आर्टिस्टिक या कलात्मक आविष्कार होता है। ये हमेशा रखा गया है। फूलों का होगा, या फिर धूप दीप नैवेद्य फल तांबूल दक्षिणा, इसके बारे में कुछ होगा, या तो फिर रंगोली होगी, कुछ भी होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। अलंकार हो गए। तो क्रिएटिविटी आपको अगर बढ़ानी है, सृजनशीलता बढ़ानी है, तो भी इसका बहुत बड़ा माध्यम है। मैंने पहले भी बताया कि सारी कला ही सृजनशीलता के परिशीलन के लिए है। आजकल और एक निकला है कि कला के उपयोग से जो साइकोसोमेटिक डिसीजेस है, साइकोसोमेटिक मतलब जो मानसिक और शारीरिक दोनों, मतलब मन ठीक नहीं है इसलिए जो शरीर पे उसकी व्याधि आती है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, ये इसको साइकोसोमेटिक बोलते हैं। या ओबेसिटी है, वेट लॉस, वेट गेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन होना है, इसके लिए थेरेपी के रूप से वापस एक बार आर्ट को लोग जानने लगे, और लोगों को समझ में आ गया जो इंडियन आर्ट का जो थिंकिंग था कितना गहरा था। ये अर्थात ये सब करने के बाद जो आपकी आत्मशोध है, आत्मज्ञान का जो आपका सारा विस्तार है, उसमें भी इसका बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है। जैसे पहले उसका उल्लेख भी हो गया, नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट। तो श्री अरबिंदो लिखते हैं कि एक प्रकार का राष्ट्र का पुनर्जागरण करने के लिए, राष्ट्र को नई चेतना देने के लिए भी कला का उपयोग हो सकता है। और इसलिए हमारे सारे स्तरों पर जो हम लोग बिखर चुके हैं, व्यक्ति के रूप में हम लोग बिखर चुके हैं, समाज के रूप में बिखर चुके हैं, इन सब में हार्मनी लाने के लिए, संतुलन लाने के लिए कला बहुत महत्वपूर्ण है। ये कला का एक बहुत ही दूरांग या एक टोटल उसका जो यूज है, उसमें ये सब आ सकता है। अभी जो मैं बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे मस्तिष्क की रचना है, और ये श्री अरबिंदो के भी पुस्तक में आ रहा है, लेकिन मैं उसको थोड़ा आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि श्री अरबिंदो ने कहा है कि इमेजिन शी वाज नेवर ए नॉच गर्ल फॉर रिच एंड पावरफुल। हमारे यहाँ जो कल्पना शक्ति थी वो कभी भी किसी अमीर आदमी के लिए या बहुत ही शक्तिशाली आदमी के मनोरंजन के लिए उसके दरबार में नाचने वाली कोई स्त्री नहीं थी। वो हमारे लिए देवी थी, और उससे हमें आगे का पाथ मिलता था, आगे का हमें पथ क्रमण होता था। इतनी उसकी बड़ी हमें उनको वाक को या कल्पना को हमने देवी का रूप दिया है। इसलिए हमारी जो लेफ्ट साइड है, जो प्रायः साइंस, फिलोसॉफी, क्रिटिसिज्म ये सब के लिए है, और राइट साइड जो है हमारी आर्ट, पोएट्री, आइडियलिज्म इसके लिए होती है। हुआ क्या है कि हमारे आधुनिक शिक्षण में ज्यादा पूरा जो हमारा विस्तार हो गया है वो लेफ्ट साइड का हो गया है, लेकिन राइट को पूरी तरह से हमने निग्लेक्ट कर दिया है। एक ऑलमोस्ट निग्लेक्टेड, कॉर्नर कर दिया उसको, एक चीप कमर्शियल यूज की तरह यूज कर रहे हैं या ऑर्नामेंटल यूज कर रहे हैं। लेकिन आर्ट या कला का जो एक महत्व था, उसको जो एक पोजीशन थी कि आप जीवन के रस को ढूंढो और जीवन के स्वारस्य को और ज्ञान को ढूंढो, वो चला गया और एक कमर्शियलाइज उसका यूज हो गया। और जो बुद्धि थी वो भी आज मिनिस्टर या स्लेव बन गई है। हमारी जो प्राण शक्ति है या हमारे जो भौतिक और जड़ हमारा जो देह है, उसके लग्जरीज के लिए या कंफर्ट के लिए उसका यूज होता है। इसके लिए हम लोग
एक ठीक तरह से एक प्रकार से कोई कल्पना नहीं कर पा रहे, जजमेंट और इमेजिनेशन जब इकट्ठा होते हैं, श्री अरबिंदो कहते हैं, तब वहां से एक आइडिया होती है, आइडिएशन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ओरिजिनली कुछ चीज पे सोचना, उसका कल्पना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वैसा हमने सोचा ही नहीं। वैसे ही अभी का जो रिसर्च है, वो रिसर्च में बहुत ज्यादा उसमें हम लोग ढूंढ सकते हैं। मैं बहुत संक्षेप में अभी बता रहा हूँ कि ये होल ब्रेन थिंकिंग मॉडल जो अभी आपको संक्षेप में कह रहा था, उसके ऊपर काफी रिसर्च हो गया है। और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स और लिम्बिक और इमोशनल जो पार्ट है, उसके लिए क्या ट्रेन करना है, उसके जो बेसिक मेमोरी फंक्शंस कैसे करने हैं, ये इसमें जब लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया, तब ये वापस एक बार उनको समझ में आ गया कि राइट और लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रोसेसिंग है, वो अगर ठीक से करना है तो आपको पैटर्न वाइज थिंकिंग को डेवलप करना पड़ेगा। सिर्फ अंकों में डेवलप नहीं होता, या इमेज में डेवलप करना पड़ेगा, या होल पैटर्न्स या कनेक्टेड थिंग्स में डेवलप, ऐसा साइंस का पूरा कहना है। उसके विस्तार में अभी तो नहीं जाएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये सब राइट साइड जो भी आप वो लोग बता रहे साइंटिफिक लैंग्वेज में, ये सारी हमारे प्राचीन कला में आ रही थी, और इसलिए कला का महत्व बहुत ज्यादा था। और डिटेल में अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कई सारे रिसर्च पेपर उसके ऊपर है। तो ब्रेन के 4 पार्ट करके, उसके हर पार्ट के शिक्षण के लिए, एजुकेशन के लिए साइंटिफिकली एक प्रकार से शास्त्र डेवलप किया गया था, और वही डेवलप किया हुआ हमारा प्राचीन जो शास्त्र है, वो उसी का विस्तार करके आधुनिक जगत में भी रिसर्च हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या था कि आर्ट एक प्रकार से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बुद्धि की जो एक प्रकार से पराकाष्ठा होती है, बुद्धि का जो विस्तार होता है, उसके लिए भी आर्ट का उपयोग किया गया था। इसी के ऊपर अभी ये साउथ कैरोलिना का एक पेपर में जस्ट उद्धृत कर रहा हूँ, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा था। दुर्भाग्य से हमने उसको महत्व नहीं दिया, और अभी वापस जब नए पेपर्स आ रहे हैं, नया रिसर्च आ रहा है, तो हमको लग रहा है शायद हमारे पूर्वज काफी अच्छी बात कर रहे थे। इस प्रकार से आर्ट या कला इंटीग्रेट करती है, उसके इंटीग्रेशन की वजह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बुद्धि का विस्तार भी बहुत अच्छा हो सकता है। कैसे होता है इसके डिटेल हमें पढ़ने को मिलते हैं। और इसके आगे देखेंगे कि आज या कल ही मैं उसको देख रहा था कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अभी एक रिसर्च चल रहा था, वहां पे उन्होंने अकॉस्टिक, ध्वनि का जो शास्त्र है, तो ध्वनि अगर आप अलग अलग प्रकार से उसको, एक कार्डियोलॉजिस्ट है स्यून वी, उन्होंने, और दूसरे उनके साथी, उन्होंने अकॉस्टिक बायो इंजीनियर है वो, उन्होंने एक प्रकार से हार्ट सेल्स को मैनिपुलेट किया, और तभी ये इमेज उसमें आ गई। तो वो सेल्स में एक इंट्रिकेट पैटर्न दिख रहा है। इसका मतलब आप जब एक प्रकार से ध्वनि को प्रकट करते हैं, और उससे आपके शरीर पर, मन पर, हार्ट पर उसका परिणाम होता है, उससे आपको कुछ पैटर्न्स दिखाई देते हैं। और ये पैटर्न्स बहुत ही, जिसको हम ऋतस्य पंथा, एक बहुत ही सुंदर तरीके से वो आते हैं। उसमें कहीं भी कैओस नहीं है, उसमें कभी भी गड़बड़ वाली चीज नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो साउंड्स आर यूज्ड टू क्रिएट एंड हार्मोनाइज एज वेल एज टू क्लीन एंड रिलीज। शब्दों से, ध्वनि से आप किसी चीज को बना सकते हैं, उसको हार्मोनाइज कर सकते हैं, और उसको शुद्ध भी कर सकते हैं। यही तो बात हम लोग पहले कह रहे थे, हमारे ऋषि मुनि जब वो मंत्र की बात कर रहे थे कि अच्छे मंत्र जब आप पठन करेंगे, आपके शरीर पर, मन पर उसका परिणाम होता है। अच्छे नाद से अगर आप छंदोबद्ध रचना से आप उसका विस्तार करेंगे, तो यही आपके सामवेद में या छांदोग्य उपनिषद में या बाकी नाद ब्रह्म की कल्पना में आ गया कि ओम इत्याकाक्षर ब्रह्म, ओम का ही जो पहला साउंड है, पहला नाद है, उसमें से विश्व की उत्पत्ति हो गई। अगर आपको विश्व को सुचारू करना है, तो वापस नाद ब्रह्म के माध्यम से जप जाप करके, नामस्मरण करके आप उसको कर सकते हैं। तो जो हमारे लोग सिंपल चीज में बताते हैं, उसको शायद हमें लगता है कि ये डिस्कनेक्टेड चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब स्टैनफोर्ड स्टडी, आप उसका लिंक भी देख सकते हैं, इनोवेशंस हेल्पिंग हार्नेस साउंड अकॉस्टिक फॉर हीलिंग, तो ये उसका शोध प्रबंध है। आप देखेंगे कि उसमें यही बात वापस बताएगी कि मंडल होता है, ये मंडल का पैटर्न सबको कनेक्ट करता है। एक नाद ब्रह्म होता है जो ओरिजिनल साउंड है, उसी विश्व की रचना के पीछे है। बहुत सुंदर रिसर्च है ये, लेकिन दुर्भाग्य से वहां से आने के बाद शायद हमारी उसके ऊपर नजर जाती। तो हमारे प्राचीन इसमें, जिसको हम लोग बुद्धि के परे रहने वाला नीतिमत्ता और सौंदर्य कहते थे, सुप्रामेंटल गुड एंड ब्यूटी, तो ये परस्यूट ऑफ ब्यूटी और परस्यूट ऑफ गुड में कोई भी विसंवाद नहीं है। हमारे बाकी सारे देशों में ये प्रॉब्लम था कि जब वो सौंदर्य के पीछे उन्होंने आराधना शुरू कर दी, तो नीतिमत्ता से वो लोग हट गए, और जब नीतिमत्ता की आराधना शुरू कर दी, तब वो सौंदर्य से बहुत ही दूर चले गए, बहुत ही जीवन बहुत ही नीरस हो गया। लेकिन भारत में ये नहीं हुआ है कभी भी। भारतवर्ष में नीतिमत्ता और जीवन की सघनता और अर्थपूर्णता और सौंदर्य की अनुभूति और सौंदर्य का आविष्कार और कलाविष्कार में कभी भी विसंवाद नहीं था। इसलिए क्योंकि जो काम है और अर्थ है, उसको भी हमने पुरुषार्थ माना था, और धर्म की कक्षा में अगर वो करेंगे तो उसको पूरी तरह से हमने प्रोत्साहन दिया। धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, मतलब धर्म के अविरुद्ध जो काम है उसमें मैं स्वयं वहां प्रकट होता हूँ। ये हमें परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान है। तो इसलिए हमारे यहाँ हर चीज का एक शास्त्र बनाया गया, हर चीज की एक कला बनाएगी। अब अश्वों की निगाह कैसे रखनी है उसकी भी कला है, रसोई में रोटी कैसे बनाए उसकी भी एक कला है, मेहंदी कैसे बनाए उसकी भी एक कला है, उसका शास्त्र भी। शास्त्र उसका साइंस बताता है,
कला उसका आर्ट बताती है। और इसलिए हमारे परमेश्वर की कल्पना में भी सत्यम शिवम सुंदरम, वो सुंदर भी है, वो शिव भी है और वो सत्य भी है, इस प्रकार की उसकी रचना कर दी गई। और हमारे जो श्री कृष्ण भगवान है, उनको वो ही इज अ गॉड ऑफ विजडम, गॉड ऑफ ब्यूटी एंड गॉड ऑफ लव। बुद्धि की पराकाष्ठा, सौंदर्य की असीम अनुभूति और भक्ति या प्रेम का आविष्कार, तीनों के लिए एक ही भगवान है। इसलिए क्योंकि सारे जीवन में एक अखंड रस बहता रहता है, और इस रस की डिलाइटफुलनेस जो है, वो नवरसों के पीछे जो एक अखंड रस है, उसकी आराधना करना, उसके तक पहुंचने का एक सामर्थ्य प्रकट करना और प्राप्त करना, उसका रसिकता से उसका आस्वाद लेना, यही हमारे सारे जीवन का यथार्थ था। आप यहाँ देखेंगे कोई महफिल में गा रहा है, जुगलबंदी हो रही है, नीचे एक छोटा बालक कृष्ण के जैसे आविर्भाव कर रहा है, सब लोग उसमें मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, क्योंकि हर चीज में आर्ट है, हर चीज में कला है। कला सिर्फ रंगमंच में नहीं है, जीवन के हर कण कण में है। अच्छा बर्ताव, अच्छी आचार, अच्छे विचार, एक प्रकार से एक हर चीज में एक सेंस ऑफ डेकोरम रहना और ब्यूटी रहना, आचार विचार उच्चार तीनों चीजों में होता है। आप पेंटिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद में आपके जीवन में आप पूरे गाली गलौज कर रहे हैं या लोगों के साथ हिंसक तरीके से पेश आ रहे, फिर आप कला के अधिपति नहीं हो सकते, आपकी कला अच्छी नहीं होगी कभी। आपके जीवन में पूरा योग आना चाहिए, वो तभी आपके कला में वो आविष्करण होता है। इसलिए हमारे कलाकार इतने महान कलाकृति कर पाए, उनका जीवन उस प्रकार से, जैसा मैंने कहा, साधना में पूरी तरह से उनका निर्माण हुआ था, बहुत कड़ी ट्रेनिंग उनकी हुई थी। विनोबा जी कहते हैं कि एक नींबू को काटने में भी कला है, कैसा नींबू काटे, अच्छी तरह से काटे तो कैसे काटे। एक झाड़ू लगाने में भी कला होती है, एक प्रकार की रसोई में चाय बनाने में भी कला है। आप ये मत समझिए कि कला सिर्फ कैनवास पे आती है या चिन्नी हथौड़े में आती है या किसी इंस्ट्रूमेंट में आती है। कला हर जीवन के हर आविर्भाव में, हर गति में, हर कृति में, हर स्थिति में कला होती है। वो कला मतलब सौंदर्य का परिशीलन, सौंदर्य की अनुभूति, सौंदर्य के लिए सारी तपस करना, और ये ऐसा सुंदरता जो शिव के साथ होती है, कृष्ण के साथ होती है, ऐसी बाजारू इसमें नहीं रहती है, वो किसी के लिए मोहताज नहीं होती है। इस प्रकार से जब हम लोग परिशीलन करते हैं, आज आधुनिक विज्ञान उसी को ही प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी या एर्गोनॉमिक्स कहता है। कई सारे साइंस डेवलप किए गए, मैं ये नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो हम लोग हमारी परंपरा में कहते हैं, शायद वो हमें थोड़ा सा दूर लगता है, लेकिन ये सारी चीजें तो स्टैनफोर्ड या बाकी लोग तो अभी कर रहे हैं। लोग जैसे हमने नॉलेज मैनेजमेंट आजकल बात करी है, व्हाट इज नॉलेज मैनेजमेंट, उसमें इंटेंजिबल या अनस्पोकन जो पार्ट है उसको निकालने की कोशिश होती है। उसी कला वही रहती है, क्योंकि हर चीज में जब पाक शास्त्र और पाक कला में फर्क ये है, पाक शास्त्र की प्रोसेस बनाई जा सकती है, उसका मैनुअल बन सकता है, इतना अदरक ले लो, इतना ये ले लो, उतनी चाय की पत्ती ले लो, उतना उबालो, उसमें इतना डालो, ये उसका शास्त्र बन सकता है। यू कैन हैव अ प्रोसेस ऑफ इट, यू कैन हैव स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ इट, और उससे उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन उसमें जो एक आखिरी समय वो गृहिणी या कोई भी जो बनाने वाला अच्छा वो जो वल्लभाचार्य है, वो अगर उसमें लास्ट में अगर अपना कुछ डालता है उसमें, जो शायद उसको भी पता नहीं उसने क्या डाला। कलाकार या गायक जब एक ही राग सब लोग गा रहे, एक ही भूप गा रहे, एक ही मालकंस गा रहे, लेकिन कुमार गंधर्व वो उसमें अलग तरीके से कुछ डालते हैं, भीमसेन जोशी कुछ अलग डालते हैं, भूपेन हजारिका कुछ अलग डालते हैं, तो उसमें वो अलग, उसमें वो चीजें बदल के आ जाती है। तो इसलिए ये तात्पर्य है हमारे लिए कि इस प्रकार से हम हर कला में एक शास्त्र देखे, साइंस देखे, और उसमें एक कला भी देखे, मतलब देयर हैज टू बी ए सृजनात्मक, एक क्रिएटिव एलिमेंट जो बहुत ही स्पेसिफिक और यूनिक है, वो भी उसमें आना चाहिए। और ये जो कला थी वो हमेशा एक प्रकार से लिंक थी इंटेलेक्ट और इंट्यूशन के बीच में। ये हमारी बुद्धि और बुद्धि के ऊपर जो प्रज्ञा होती है, जहां से कल्पना शक्ति और जहां से हमें आविष्करण होता है अलग अलग नए नए चीजों का, ये दोनों के बीच में का लिंक है, वो हमारी कला होती थी। और इसलिए जैसे शुरुआत में भी एक कोट में कहा गया कि आवर एम वाज नेवर इमिटेशन ऑफ नेचर बट इट वाज इन्वोकिंग ऑफ द इन्फिनिट। नेचर का इमिटेशन करना है तो फोटोग्राफी का गैलरी लगा सकते हैं, फिर चित्रकार की शिल्पकार की जरूरत क्या है, क्योंकि ये नेचर का, प्रकृति का सिर्फ एक प्रकार से रिपीटेशन करना नहीं है, हमें इससे ये देखना है कि किस प्रकार से हम एक नया जगत निर्माण कर सके, किस प्रकार से इस मटेरियल के पीछे जो स्पिरिट है, इस जड़ के पीछे जो चेतना है, चेतना नाम, नित्या नाम, इस प्रकार से जो अनित्य में जो नित्य है, अचेतन में जो चेतन है, उसको ढूंढने के लिए कला का आविष्कार है। इसलिए सिर्फ नेचर का इमिटेशन करना नहीं है, इन्वोकिंग स्पिरिट की बात है। तो ये सब जो चीज करते हैं जब, तो एक व्यक्ति पर इतना गहरा परिणाम उसका होता है कि कई साल तक वो उसको भूल नहीं पाता। जो मैंने आसाम में कुछ संगीत सुना था, मैंने आज सुबह में दीपंकर दा या बाकी लोगों से भी बात कर रहा था कि ये अभी भी मेरे ऊपर उतनी उसकी छवि है जो मैंने देखा था वहाँ अंबारी में या मालिनी थान में या परशुराम कुंड में या कई सारी जगहों पर जब मैंने अलग अलग कला का आविष्कार देखे थे, तो उसको मैं आज भी उससे उतना ही प्रभावित हूँ। तो ये कला की साधना और कला का जो आविष्कार है उसमें से जो हमें महानता दिखती है,
वो ये दिखती है कि उसका आनंद कभी खत्म नहीं होता, वो अमर्याद रहता है। कलाकार चला जाता है, कुछ उसके शिल्प टूट जाते हैं, कुछ पेंटिंग्स मिलते नहीं है, लेकिन उसका जो अमरत्व है वो वैसे ही रहता है। जैसे बुद्ध के हमें या शिव के चेहरे पर एक प्रकार का निर्वाण की शांति दिखती है, एक स्मित हास्य दिखता है, कला उस प्रकार से होती है, वो हमेशा हर चीज में आनंद ले पाती है। इस प्रकार से उसका एक अंतरात्मा को एक वो ढूंढ पाती है, उसको पा देती है। देखने वालों को भी वही अनुभव होता है, सुनने वालों को वही अनुभव होता है। ये कला की महानता है। तो मैं जब पहली बार तिनसुकिया में गया था, एकदम संक्षेप में बताता हूँ, तो हमारे बच्चे सब विके बच्चे, वहाँ उनका एंटरटेनमेंट गैदरिंग का प्रोग्राम था, और बहुत दूर से मैंने एक छोटी सी बच्ची थी, मुझे लगता है 4वीं या 5वीं कक्षा में, उसके मुख से मैं तब गेट पे था, क्योंकि हमारा तभी वहां पे कुछ काम चल रहा था कार्यकर्ताओं का। उसके मुंह से मैंने एक सुंदर गाना सुना जो मुझे अभी भी याद है। मैं आप कल या परसों किसी को पूछ रहा था, कला का कितना बड़ा प्रभाव, तो मैं बता रहा हूँ, मुझे इतना भाषा का ज्ञान नहीं है, या मेरा संगीत तो बिल्कुल मुझे आता नहीं है, लेकिन वो गाना या इस प्रकार से था कि गो से पाती दिले फूलो रे हो राम, ओ राम ओ राम, फूलो रे हो राम, फूलो रे हो राम। ये छोटी बच्ची गा रही थी, उसको अभी लगभग मैं बोलता हूँ आपको 28 साल हो गए। वो वही वैसा का वैसा मेरे अंदर गया। क्यों गया? बाद में मुझे पता चला कि हमारे एक महान सुपुत्र महात्मा के ज्योति प्रसाद अग्रवाला ने उनकी रचना की थी, और वो बहुत फेमस है, ये बाद में पता चला। लेकिन जब मैंने सुना, मुझे ये कुछ उसका ज्ञान नहीं है, इट इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस। मुझे वो एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसे के वैसे मेरे अंदर आ गया, और 1 2 दिन 3 साल नहीं, 28 साल तक वो बरकरार रहता है, या 25 साल बरकरार रहता है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सॉन्ग, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आर्ट का इतना बड़ा इम्पैक्ट किसी चीज पर, चित्त शुद्धि के लिए, किसी को अपने निज धाम के पास लेके जाने के लिए, उसकी तपस को और समृद्ध करने के लिए एक बहुत बड़ा। इसलिए भरत मुनि के शब्दों में कहा गया, तो वो कहते हैं कि सारी कलाओं को मुझे एक साथ करना था। ब्रह्मदेव के साथ उनकी कथा है, वो भी बता सकते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे क्या काम मिला था कि सारे समस्त भावों का एक साथ प्रस्तुतिकरण करो, एक साथ उसको लेके आओ। इसलिए मैंने नाट्य का निर्माण किया। इस प्रकार से बोलते कि लोग थकावट से, थोड़ा शोक से जब पीड़ित होते हैं, दीन दुखियों को विश्राम देने के लिए कला होती है, उनको नई दृष्टि देने के लिए होती है। इसका लोग अनुकरण कर सकते हैं। बहुत सुंदर लिखा है, आप जरूर पढ़िए नाट्य नृत्य के बारे में। जो हमारे शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है या कोई भी शास्त्र है, आप देखिए कितना गहराई से उसका विचार किया गया है। और नाट्य शास्त्र में ये सारी बातें आती है जो मैं अभी बता रहा हूँ। शैवागम जो आलोक में भी इसका कला को महामाया का रूप दिया है। ये चिन्मय विलास की शक्ति है, ये सम्मूर्तन शक्ति है, ये आदि माया का आविष्कार है। क्योंकि जैसी आदि माया ने विश्व की निर्मित की शिव जी के संकल्प के जैसे, उसी प्रकार हम लोग रंगमंच पे या किसी कैनवास पे या किसी डिजिटल अभी स्क्रीन पे भी उसी की निर्मित करती है। तो एक प्रकार से हर कला महामाया के चिन्मय विलास और उसकी सम्मूर्तन शक्ति का रूप है। ये वाक्य भी मैं पद्मश्री डॉक्टर केशवराव जी के उदाहरण से मैं ले रहा हूँ। तो इसलिए कोई भी जब हम लोग हमारा मंदिर देखते हैं, शिल्प देखते हैं, बड़ा सब्जेक्ट है, मेरे पास उतना समय, लेकिन मेरी कोशिश है कि कोई भी आप इस प्रकार की रचना देखेंगे तो आपको एक प्रकार से एक सेक्रेडनेस, एक आध्यात्मिक अनुभूति आती है, उसकी भव्यता दिखती है आपको। हर मंदिर, उसके पीछे का जो लैंडस्केप और ये सारा जो एकत्रीकरण आप देखते हैं, तो आपको ये लगता है कि आप ये पृथ्वी का जो ऐहिक जीवन है उसके आप ऊपर उड़ गए। और मंदिर की रचना, हमारे जीव की रचना, हमारा जो एक सटल बॉडी है उसकी रचना, सूक्ष्म शरीर की रचना, उसके अंदर जो चक्र है उनकी रचना, ये सारा एक ही है। ये कहने का प्रयास था हमारे कलाकारों का कि ये सारा जो आर्किटेक्चर है एक प्रकार से संगीत है। ये सारा संगीत है, वो भी एक आर्किटेक्चर है। हर कला एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस सारे के पीछे गणित है, बहुत गहरा गणित है। मैं आज नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन बीज गणित है, कैलकुलस है, भूमिति भी है उसके पीछे, और ब्रह्मांड का ज्ञान भी है, खगोल शास्त्र भी है। तो जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये कहने की ये सारी बहुत ही आविष्करण उसका जबरदस्त होता है। इसलिए किसी भी मंदिर में आप जाते तो एक अलग अनुभूति आपको मिलती है, जिसको आप अनिर्वचनीय, आप उसको बना नहीं पाते, बता नहीं पाते। तो शिल्पकला के और पेंटिंग के बीच में जो फर्क है वो धीरे धीरे, या डांस ऑफ शिवा के बारे में बहुत ही संक्षेप में ले रहा हूं, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन अलग अलग रूपों में अलग अलग कलाकारों ने जो शिव का जो नृत्य है उसको, उसके बारे में बात की है, उसको बार बार करने की कोशिश की है, उसको बार बार उसको रिपीट करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, आज जो हमारा विश्व का जगन्मान्य एक लैबोरेटरी है जहाँ पे CRN, जिसमें विश्व की उत्पत्ति कैसी हो गई उसके बारे में कहा गया है, उसके बारे में संशोधन चल रहा है। उन्होंने भी अपने प्रयोगशाला के बाहर शिव जी का डांस ऑफ शिवा के नटराज के रूप को रखा है। तो साइंस से लेके लोक कला तक शिव की जो नृत्य है उसकी हर जगह पे आपको उसका महत्व दिखता है।
अर्थात जो रंगकला है उसका सबसे बड़ा आविष्कार तो अजंता में है, आपने दिखा है। उसके साथ तंजावुर या पैलेस आर्ट में या मधुबनी जैसे छोटे छोटे लोक कलाकारों में हर जगह पे आपको हर भारत की कला दिखती है। छोटे घर के सामने भी दिखती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इन इंडिया एवरीथिंग इज आर्टिस्टिक, एवरीथिंग इज आर्टिस्टिक, टफ लाइक अ मेटल वायर एंड गेट बेंट इनटू अ ब्यूटीफुल कर्व, दैट्स हाउ द इंडियन माइंड इज। इस प्रकार से उसको बारे में वो बात करते हैं। इसलिए कला का हमारे जीवन में साइंस एक प्रकार का, एक साइंस है, एक प्रकार का आर्ट भी है, और इस प्रकार से उसका अनेक प्रकार से उसके उपयोग होते हैं। उसकी पर्सनल वैल्यू होती है, सोशल वैल्यू होती है, उसकी राष्ट्र के लिए भी उसकी एक बहुत बड़ी महत्व उसका नेशनल वैल्यू है। उसकी चित्त को शुद्ध करना है, उसको एकाग्र करना है, उसको ध्यान में लाना है, ध्यान के रूप करना है, उसको एक प्रकार की हार्मनी या संतुलन लाना है, और एक सौंदर्यानुभूति, एक एस्थेटिक सेंस डेवलप करना है। तो आपको कला के लिए आपको विचार करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एकता के लिए भी उसका उपयोग हो जाता है, विविधता में एकता उससे दिखती है, कई सारी चीजें उसमें आती है। ये एक प्रकार की आनंद की मीमांसा है, और हर चीज में आप देखें कि कोई रंग है, रूप है, कोई रेशा है, उसका कोई रचना है, और उसका प्रोपोर्शन, उसका एक गणित भी है। तो इसलिए ये सारे चीजों का इकट्ठाकरण करके हमें पता चलता है कि भारतीय संस्कृति में कला का जो असाधारण महत्व है वो क्या है। ये मेरा थोड़े से मेरे अल्पमति से और मेरे पास जो समय था उसमें मैंने बताने की कोशिश की। मुझे लगता है मेरा समय यहाँ तक ही था। अगर डिटेल में इसके बारे में किसी को अगर जानना है तो ये सारे रिसर्च पेपर या मैं उपलब्ध करके दे सकता हूँ। मैं यहाँ अपने वाणी को विराम देता हूँ, और अगर किसी को कुछ प्रश्न है या किसी को समारोह कुछ कहना है तो कह सकते हैं। धन्यवाद जोशी जी, इतना कठिन विषय को आप इतना सरलता से हमारा बीच उपस्थापन किया, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो अभी देयर विल बी 10 minutes for question answer session, as Joshi ji agreed to spend some time for question answer. If someone have any question, please you can unmute yourself and directly ask your question. Anyone, you can start. আপোনালোকে যিকোনো ভাষাত ক'ব পাৰিব, আমি দৰকাৰ হলে তেখেতক কৈ দিম, যি প্ৰশ্ন খুদে খুদিব পাৰে। मेरा ईमेल एड्रेस पूछा गया है चैट में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा संपर्क का जो एड्रेस है। ईमेल एड्रेस दिया है, आप यूज कर सकते हैं उसको। আপোনালোকৰ কোনো প্ৰশ্ন থাকিলে আপোনালোকে সুধিব পাৰে। नमस्कार, आपने ब्रह्मनाथ के बारे में बताया है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करने से अच्छा रहेगा। हाँ, जो आदिम जो स्वर है उसके बारे में ना, नाद ब्रह्म। तो हमारे यहाँ पे जो कल्पना है विश्व की, हर जो हमारे उपनिषद है उसमें एक प्रधान विषय ये होता है, वेदों में या उपनिषदों में। जैसे वेदों में नासदीय सूक्त में ये विषय आया है कि विश्व की रचना या विश्व का जो शुरुआत की कैसे हो गई, हाउ द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे यहाँ पे कॉस्मोलॉजी और कॉस्मोजेनी, ये दोनों विषय, विश्व की निर्मिति और विश्व की रचना, ये दोनों विषय हमेशा आते हैं। वेदों में भी आए, उपनिषद में आए, बाकी पुराणों में भी बाद में उसके बारे में कहा गया। तो इसमें एक भाग हमेशा आता है कि रचना हुई कैसी। तो हमेशा एक प्रकार से जो एक उसका सीक्वेंस है, तो पहले प्रकाश, उसके बाद ध्वनि, उसके बाद जो ध्वनि के कंपन होते हैं। आज भी साइंस उसको मानता है कि कोई भी अगर साउंड या किसी भी चीज के कंपन होते हैं तो उसमें से वारंवारिता की वजह से एक प्रकार का घनीभूत आकार होता है। एक सिंपल उसका उदाहरण देते हैं कि जब आप बटर मिल्क कैसे बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, छाछ को बनाते समय आप चर्निंग करना पड़ता है आपको, उसको एक वारंवारिता, मतलब देयर इज ए रिपीटेटिव मोशन, और वो रिपीटेटिव मोशन साइक्लिक मोशन है। तो ये ऐसा होता है, मतलब जो हमारे रसोई में होता है या छोटे से क्रिया में होता है वही विश्व में भी होता है। तो बार बार जब कंपन या बार बार जब किसी चीज का साइक्लिक मोशन हो रहा है तो उससे क्या होता है, एक घनीभूत आकार उसमें बन गया जो मक्खन की तरह ऊपर आ गया। तो उसका फिर तत्ववाद ये करते हैं कि मक्खन कहाँ था, फिर क्या वो छाछ में था? हाँ, छाछ में था, फिर वो क्यों नहीं दिख रहा था? तो मक्खन छाछ है क्या? मतलब इसमें तात्विक बहुत सारी बातें उसमें बाद में आती है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जो रचना हुई है विश्व की वो शून्य से नहीं हुई। Nothing can be created out of nothing. There is already something which was there and now it is getting manifested. तो ये मैनिफेस्ट होने के लिए उसको जो प्रक्रिया है वो एक प्रकार से ध्वनि के कंपन, मतलब पहले प्रकाश, फिर ध्वनि, फिर उसके बाद ये सब एक रचना का आविष्कार है। तो उसमें हम लोग ने हमेशा इसलिए
जो नाद ब्रह्म या ओंकार का जो प्राइमोरियल साउंड हम लोग कहते हैं उसको बहुत महत्व दिया है। और लोगों को लगता था ये तो सिर्फ कुछ भारत की ऐसी मनगढ़ंत कहानी है, ये नाद होने से क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता है, पदार्थों में थोड़ी ना नाद का कुछ परिणाम हो सकता है। लेकिन अभी साइंस बार बार मान रहा है। आपको और एक उदाहरण देता हूँ, कई सारे उसमें शोध भी हो गए कि पानी में अगर आप अलग अलग वाइब्रेशन से अलग अलग कंपन करें, अलग अलग म्यूजिक लगाए, तो पानी के अंदर पैटर्न तैयार होते, अच्छे डिजाइन तैयार होते। उसके फोटोग्राफ के लिए एक पूरा बुक है, पानी के अंदर क्या क्या डिजाइन होता है उसका एक पूरा बुक अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो ये कंपन के वजह से ये कैसे डिजाइन बन गए? स्वाभाविक विश्व के पीछे एक रचना है। देयर इज ए कॉज, देयर इज ए डिजाइन एंड देयर इज ए रीजन फॉर द वर्ल्ड टू बी देयर। ये कोई कैओस नहीं है, ऐसे नहीं बन गया। विश्व के पीछे अंतरात्मा की और विश्वात्मा की प्रेरणा है। तो इसलिए जब पानी को भी आप कोई म्यूजिक या कोई ध्वनि कंपन देते हैं, उसके अंदर पैटर्न बनता है, पूरा बुक उसके ऊपर फोटोग्राफ के साथ है। चावल को भी होता है, हर चीज को होता है, वृक्ष को होता है। अभी जो मैंने आज का जो पेपर बताया आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले ही, अभी आप देख सकते हो उसको इंटरनेट पे भी लिंक भी दिया है मैंने आपको, मैं दे सकता हूँ। तो हृदय के अंदर अगर आप एक प्रकार के कंपन अगर उसमें छोड़ दे तो हृदय का जो सेल है उसमें एक परिणाम होकर एक पैटर्न तैयार होता है। अभी जाके थोड़ा सा साइंस को पता चल रहा है कि उपनिषद कहाँ खड़े। मैं हमेशा बोलता हूँ कि साइंस थक गया और जब एक स्टेप पे आके बैठ गया कि भाई आगे नहीं चला जाता, तब उसको पता चला एक माँ सामने खड़ी है, अपने दोनों हाथ फैला के उसको बोलिए आजा बेटे, मैं तो तुम्हारी राह दिख रही थी। ये माँ भारत माता, ये हमारी उपनिषद और वेदों की माता है। क्योंकि ये साइंस अभी पता चल रहा है कि अरे कंपन करने से हृदय के पेशियां बदलती है, उसमें एक मंडलाकार रचना होती है। मैंने आपको फोटोग्राफ भी दिखाया। तो ये नाद ब्रह्म का जो हमने शुरुआत में प्रश्नोपनिषद में रई और प्राण से पूरा विश्व होता है करके आया है, तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश आया है, और सारे उपनिषदों में यही रचना बार बार, मतलब ये विस्तार बहुत हो गया है। और पुराणों में भी ये बार बार ये विवचन आता है कि विश्व की निंदा, अर्थात पुराणों में थोड़ा सा वो कथा कल्पना में आता है लेकिन विषय वही है। तो दैट इज दैट नाद ब्रह्म, ये ओरिजिनल जो साउंड आप कह सकते हो, जो पहली जो एक नाद था, वो नाद से सारा आगे विस्तार होके हमें जो घनीभूत पदार्थ मिलते मिलते सारी उसके जो अभी आप साइंटिफिकली भी प्रूव कर सकते हैं। जैसा मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर आपको कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट को कोई आकार देना है, आप कैसे बनाते हैं उसको? पॉटर कैसा पॉट बनाता है, उसके ऊपर उसके सामने तो क्ले रखी हुई है, फिर उसको चक्के को घुमाता है, वो घुमाता है तो फिर उसको वो आकार दे पाता है, बिकॉज ही इज गिविंग ए कंस्ट्रेंट टू दैट बाय हिज हैंड्स। उसको कंस्ट्रेंट दे रहा है और फिर उसको घुमा भी रहा है, उसको एक चक्राकार गति है, साइक्लिक मोशन है, और फिर उसको एक मटेरियल है। अभी उसको वो शेप आ गया, घट का शेप आ गया, घट बन गया, मटकी बन गई। तो जो छोटे छोटे क्रियाओं में एक महिलाएं घर में रोज बैठ के ऐसे रसोई में पकाती है, क्या होता है वो, ये सारा रहस्य अभी जाके थोड़ा पता चल रहा है कि भारत के सारे ऋषि मुनि ने जो कहा था, जो फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में कहा गया है, ये सारा यथार्थ है। दिस इज ऑल वेरी साइंटिफिक। ये अभी जाके थोड़ा सा पता चल रहा है। धन्यवाद धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्ते। नवरस के बारे में थोड़ा बताइए। नवरस कौन से है? नहीं, नवरस के नाम बोलने हैं आपको कि क्या बोलूं? हाँ, नाम बोलना है। ओके, नवरस के नाम मैं आपको बोलता हूँ। बहुत मतलब आपको बाकी जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन आपके सुविधा के लिए मैं यहाँ पे उसको वापस रीड करता हूँ कि ये जो मैंने कहा था, जो नवरस पूरे हमारे इसमें होते हैं, वो क्या है? तो श्रृंगार है जिसका स्थायी भाव रति है, हास्य है, हास उसका स्थायी भाव है, करुण है, बाद में शोक उसका स्थायी भाव है, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। ये पहले नवरस थे, और बाद में कोई जो हमारे और तत्ववेत्ता थे उन्होंने और एक 10वां रस भी ऐड कर दिया, बोले वत्सल या वात्सल्य जो है वो भी 10वां रस होना चाहिए। ये सारे नवरस जो है उसके पीछे विश्व का जो मूल आनंद है, जिस आनंद से विश्व की निर्मित हो गई, वो है। क्या ये उत्तर ठीक है आपको? मैंने आपको लिस्ट बता दिया, चाहिए तो आप उसको डॉक्यूमेंट भी आप देख सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार सर, बहुत सुंदर। और कोनो क्वेश्चन? और सारे रस महत्वपूर्ण है। देखो, मैं थोड़ा सा सॉरी, मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ आपका, क्योंकि ये बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, तो मुझे भी और कंप्लीट करने के लिए ये हो रहा है। तो रंगमंच में जब कोई करुण प्रसंग हो रहा है तो उसको देख के भी लोग तालियां बजाते हैं। भरत मुनि ने या हमारे सारे जो शास्त्रकार थे, कला के जो आविष्कर्ता थे, उन्होंने ये बात को बहुत अच्छी तरह समझा है कि वहां पे शोक बनाया जा रहा है। उरुभंगम जैसा नाटक है भास का, जिसमें वो दुर्योधन के ऊपर गदा प्रहार हो गया और वो वहां गिर गया है और उसका जो बेटा उसको मिलने को जा रहा है। बहुत सुंदर नाटक है। वहां शोक का प्रसंग है, लेकिन लोग यहाँ वाह वाह कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? वहां तो शौक है, आपको भी रोना चाहिए। हाँ, आप मोमेंटरी रोते भी है, बट यू गेट प्लेजर आउट ऑफ इट, यू गेट हैप्पीनेस। आपको लगता है वाह कितना बढ़िया अभिनय किया है, कितना सुंदर नाटक आज देखा मैं, इतना शोकम, मैं बहुत शोकमग्न हो गया। ये जो रसास्वाद है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं।
वहां कोई मृत्यु भी पाता है, यहाँ पे आपको लगता है कितनी अच्छी फिल्म थी, एंड में जो उसका मृत्यु का सीन तो बहुत ही सुंदर बनाया उसने। दैट मीन्स अभी आप थोड़ा दृष्टा भाव को आता है, यू आर नाउ गेटिंग अवे फ्रॉम दी रियलिटी, यू नो द हमड्रम ऑफ लाइफ। आपको अलग होके आप देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ कभी शोक होता है, कभी हास्य होता है, कभी करुण होता है, कभी विभत्स होता है, लेकिन सारे नवरसों के पीछे मेरे जीवन का आनंद मुझे लेना है। इसलिए ये करुण प्रसंग, और उसमें एक प्रकार का कंस्टेंट होता था, ये नहीं कि आप कुछ भी दिखाओ, हिंसा कैसी दिखानी है। आजकल वो कंस्टेंट पूरा निकल गया है, क्योंकि भारतीय कला से हम लोग अलग गए, पाश्चात्यों के अनुकरण कर रहे। तो आपको हास्य कितना दिखाना है, आपको श्रृंगार कितना दिखाना है, आपको विभत्स कैसे दिखाना है, इसका एक प्रकार से शास्त्र है। यू शुड नॉट डू टू मच ऑफ दिस थिंग्स, यू शुड नॉट बी टू मच ऑफ एक्सप्लिसिट इन इट, नहीं तो व्यक्ति का उसके अंदर का जो साधन है वो टूट जाता है। यू वांट टू गिव हिम दैट, यू नो, इटर्नल, उसमें से जो आनंद है उसको आपको देना है, आपको उसमें उसको डुबाना नहीं है। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ थॉट इन दैट। इसलिए नवरसों का परिष्करण करना, ये उसका आविष्करण और उसके परिशीलन करना एक बहुत बड़ी बात है। चौष्टिक कला, हाँ जी, 64 कला भी है ना। हर कला, उसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, चाहिए तो मैं भी दे दूंगा। हर जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने कला का एक प्रकार, आप रसोई उसको भी पाक कला बोलते हैं, कला है ना। कोई अच्छा बना नहीं पाता तो खराब कर देगा वो वही चावल है, वही दाल है, लेकिन उसको बनाने को नहीं आता, ये कला है। और शास्त्र भी है, देयर इज साइंस एंड देयर इज आर्ट ऑफ एवरीथिंग। भारत में अश्व की निगरानी भी एक कला है, बाद में मेहंदी लगाना कला है, बेड को अच्छी तरह से सजाना ताकि आपको निद्रा ठीक से आए, तकिया ठीक से रखना, ये भी कला है। तो जीवन के हर छोटे छोटे अंग में कला है। इसलिए विनोबा जी बहुत सुंदर उस पर लिखते हैं, मतलब जैसे अरविंदो है वैसे बाकी महापुरुषों ने बहुत सारा परिशीलन किया है। गांधी जी है, विनोबा जी है, स्वामी विवेकानंद है, चिन्मयानंद है, बहुत सारे हमारे श्रीमद शंकर देव, हर लोगों ने वही वेदांत तो वापस कहा है, ऐसा मेरी धारणा है। तो वो भी क्या कहते हैं, आप शंकर देव जी की मैंने वहां पढ़ी थी, आप उनकी रचनाएं देखिए। जो श्री कृष्ण ये जा रहे हैं, मार्ग से जा रहे हैं, और गोपियां ऊपर से उनको देख के वो गाना गा रही है, इतना सुंदर एक एक आविष्करण है उसमें। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, जीवन के हर क्षेत्र में, हर छोटे छोटे प्रसंगों में भी आपको कला ढूंढनी आनी चाहिए। आप सीढ़ियां चढ़ के जाती है वो भी कला है, उतरती है वो भी कला है, आप झाड़ू लगाती है वो भी कला है, आप झाड़ू कोने में रखती है वो भी कला है। इफ यू आर नॉट पुटिंग, सी दैट्स हाउ आप हर चीज में ईश्वरत्व को देखते हैं, आप ईश्वर को उसमें देखते हैं, चाहिए वो छोटा सा एक तिनका क्यों न हो, लेकिन उसका विश्व में उसका एक महत्व है, उसको कलात्मकता है उसमें। निर्माता ने उसको भी एक अच्छी तरह से बनाया है। तो झाड़ू हो तो भी क्या हो गया, आज उसको मैं अगर ठीक रखूंगी कल, इसलिए हमारे यहाँ झाड़ू को भी लक्ष्मी बोलते हैं। हमारे अब पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो उसको पहली पूजा करते हैं, फिर उसको साफ करने को लगाते हैं, पहले दिन उसकी पूजा होती है ना। तो इसका क्या तात्पर्य, उसको कैसे पकड़ना है, उसका बहुत विवरण विनोबा जी कहते हैं, ऐसा पकड़ो, ये एंगल में पकड़ो। ये क्या है, छोटी सी क्रिया है, लेकिन क्रिया का मतलब क्रिया कर, उसको कर्म हैज टू बिकम विकर्मा, यू नो। अकर्मणस्य बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, गहना कर्मणो गति। गीता में कहा गया कर्म की गति बड़ी गहन है, क्योंकि अगर आप कर्म में विकर्म देखते हैं, एक छोटी सी कर्म है झाड़ू लगाना, उसमें आपको विशेषता लानी है। इसलिए कुछ लोग अच्छे हमारे यहाँ कलाकार क्यों हो गए, कि उसमें कला में और कर्म में और भक्ति में और ज्ञान में कोई भी उसमें अलग भाव नहीं था। What is knowledge is same as the art, is same as the science, is same as the your day to day work. आपकी डे टू डे ड्यूटी में ये सब आता है। तो कोई कबीर जब ये बना रहा है, वस्त्र बना रहा है, तो वो क्या बोलता है कि मैं जब ऐसा सीधा धागा खींचता हूँ तो वो पृथ्वी का रेखांश हो जाता है, मैं जब आड़वा धागा खींचता हूँ तो उसको अक्षांश हो जाता है, जब मैं वस्त्र बना रहा हूँ तो मैं श्री राम जी के लिए एक प्रकार का उसका एक शालू, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, शॉल बना रहा हूँ मैं। ये भाव है, तो ये भाव भक्ति का भाव है। क्रिया जो है वो उसका कर्म है, उसका जो उसके स्वधर्म की तरह वो कर्म कर रहा है, कर्तव्य कर रहा है, उसका आपकी लाइवलीहुड के लिए वो कुछ काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे भाव है, ईश्वर का भाव है। मैं किसके लिए बना रहा हूँ, मैं किसी ग्राहक के लिए, मैं मार्केट में सेल करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। अंततः उसको करना पड़ेगा तो ठीक बात है, बट भाव वो नहीं है। भाव यह है कि मैं श्री राम के लिए एक शाल बना रहा हूँ। ये भाव हर संत या हर हमारे व्यक्ति के अंदर था, इसलिए वो कर्म था, वो विशेष कर्म हो गया। ये तात्पर्य है। चारों योग का एकत्रीकरण आपको कला में मिलता है या किसी क्रिया में मिलता है। धन्यवाद। Please go ahead. Please go ahead. Yes. I have got a question. रसराज पारा के बारे में कुछ बताइए सर। आप एक लाइन बोले। मैंने एक स्लाइड में था, वो क्या हो गया ना, हमारे यहाँ एक और एक बढ़िया चीज क्या थी, जो एक शाखा में है उसी का परिणाम दूसरी शाखाओं में भी करते हैं। दैट मींस इफ यू हैव फाउंड आउट समथिंग फॉर द यू नो द फील्ड ऑफ आर्ट, सेम विल बी यूज्ड फॉर द मेडिसिन आल्सो। मतलब अंतर उसका जो नीचे का अंडर करंट है वो हमेशा सेम अध्यात्म का रहता था, या जो हमारी जो
फिलोसॉफी का रहता था। तो यहाँ पे रस की आविष्कृति की काव्य में, कला में और नाट्य में। तो यहाँ आयुर्वेद में या हमारे जो वैद्यक शास्त्र है उसमें भी रस का उपयोग किया, क्योंकि रस तो सेम है। तो फिर उसमें क्या कहा कि यहाँ जैसा रसेश्वर जिसको बड़ा ये आविष्कृति को रसेश्वर कहा है, वैसे ही सारे मैटर में, सारे केमिकल्स या जिसको भी आप कहेंगे रसायन है, जिसका ये सारा वैद्यक शास्त्र के लिए धातु का, उनके चूर्ण का, उनके भस्म का वगैरह उपयोग होता है, उसमें पारा जो है, पारस, पारा एक्चुअली नहीं होगा शायद, पारस मतलब जिसको एक कहते हैं जिसके टच से लोह भी सुवर्ण हो जाता है, तो वो जो है वो रसेश्वर है। इट्स लाइक ए गॉड इन दैट, यू नो। सो वेरेवर यू फाइंड एक्सेलेंस, जिसमें भी सबसे ऊंचाई तक आप लोग जा सकते हैं, वेयर यू कैन रीच द जेनिथ ऑफ योर अचीवमेंट, दैट इज दी रसेश्वर फॉर इट। उस भूमिका में अभी आप मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो कौन सा सबसे रसेश्वर होगा, जिसमें सबसे ज्यादा मेडिसिनल क्वालिटीज है, वो रसेश्वर होगा। इस प्रकार से उसको रखा गया। धन्यवाद जोशी जी। I think it is a very enlightened deliberation on a difficult topic. If you on Indian art, a science of cultivating knowledge and bliss in life, and you have started with the first slide. If I remember correctly, that art is all about lines, colors, shapes, and aesthetic beauty and aesthetic experience of unity and diversity. And at the end, you have rightly focused on that art is a way of life, and it is a part of our daily life, and it is both art and science. It is a pursuit of our beauty, and it's a link between intellect and intuition. And also you have focused on that architecture is frozen music, and you have highlighted on various aspects of art and its different dimensions. So we are indeed fortunate to have a rich deliberation on a very important topic on Indian art from academic academically rich experience on various aspects of the particular topic. And you have rightly pointed out about Stanford University research, and I am sure that the NASA has also recently, I think, published one link about the Om of Sauromandal sound. I think these are the researches which are being conducted in universities, in Stanford University, Oxford University, and you have rightly focused about such type of researches are not being done in India. I think this is a critical challenge for all of us. And our national education policy, if you look at the entire national education policy 2020, has focused on these, our traditions, our values, and how to, give more stress on our research, on our traditions, on our cultures, so that we can become again Vishwa Guru. Because India's, world first university was established in India, but we are nowhere in 1000 best universities in the world. This is a very, very, deplorable situation. If you look at India's world first 1000 universities in Times Higher ranking, you will find IIT Bombay and some other few IITs in that particular list. So that means we must focus on more and more on our research, and you have rightly focused on that particular aspect also. We are indeed benefited from your rich deliberation, and we are grateful to you, Joshi ji, for that you have spared valuable time with us despite your busy schedule. Namaskar to you. Namaskar. On behalf of Center for Studies in Human Development, we are grateful to you, Joshi ji. Namaskar. You have done wonderful work, sir. Thank you so much. This is a Narendra ji, namaskar. Namaskar. Namaskar, Nigant Dada. Thank you for inviting me. I express my gratefulness to you that you have accepted our invitation despite your busy schedule. No, it's my pleasure and honor to be part. Yes.